Hello friends, this is Vipin Kumar here. Welcome back to my YouTube channel Vipin K Tech Tips, and in today's video I am going to discuss one numerical problem from Flight Mechanics 2, and in this numerical problem I am going to explain about the movement of neutral point when it changes from stick fixed case to stick free case. So what happens to neutral point? Okay, so let's start. So this is the numerical problem which we are going to discuss. uh, as you can read the numerical problem here, an airplane has the following characteristics: obtain the movement of the neutral point on freeing the stick. Okay, so generally in this numerical, the pre-existing condition is the stick fixed case. Okay, and if I make the stick free, then what will happen to neutral point? That is what is asked in this numerical problem. So basically the difference of two neutral points has been asked in this problem. So x and p by c minus x and p prime by c. So we have to find out this. Okay, so where x and p जो है that is neutral point of stick fixed, and this is neutral point for stick free. Okay, so इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना, आंसर हमें दे रखा है, so we have to verify whether our answer is correct or not. Okay, so if we look at the given data, here you can see S, which is known as the wing surface area, is given, then CL alpha W is given. Okay, CL alpha W is what? It is basically the lift coefficient slope for the wing. Okay, and here as you can see CL alpha T, CL alpha T क्या है यहाँ पे? CL alpha T is the lift coefficient slope of the tail. Okay, so if that is not given in the numerical, so generally what we consider that since the geometry or the airfoil profile of wing and tail is same, so we can consider CL alpha T equal to CL alpha W. So that is what we are going to consider in this numerical. Then tail surface area is given as 4.6 meter square. Tail moment arm, which is denoted by LT, is 7.6 meter. VH is given as 0.55. So VH is what? It is tail volume ratio, which is given by this formula ST into LT upon S into C bar. ST is the tail surface area, LT is the tail moment arm. This is wing surface area and chord length of the wing, mean aerodynamic chord. Okay, then dClt by d delta E, this is given dClt by d delta E, so which is 1.9 per radian, and this is d epsilon by d alpha. There is some mistake here, printing mistake, so but this value is d epsilon by d alpha. Neta is given as 0.98. So what is neta? It is tail efficiency. Okay, and it is the ratio of dynamic pressure of tail by dynamic pressure of wing. ओके, इसका मतलब है कि अगर टेल पे जो वेलोसिटी है अगर वो कम है और विंग पे ज़्यादा है, वो कब पॉसिबल है? जब डाउन वॉश होगा वहाँ पे। अगर ये केस है तो नीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, और इफ सम केस डायनेमिक प्रेशर ऑन द टेल इज ग्रेटर देन डायनेमिक प्रेशर ऑन विंग, देन ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में क्या होता है,
नीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर डाउन वॉश का कोई इफेक्ट नहीं है टेल पे, लेट्स से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर फ्यूजलाज रेफरेंस लाइन है यहाँ पे और विंग की लोकेशन समवेयर हियर, ठीक है, और अगर टेल इस जोन में है, इस जोन में जहाँ पे कि वर्टेक्स फॉर्मेशन है और वर्टेक्स फॉर्मेशन की वजह से डाउन वॉश हो रहा है, अगर टेल यहाँ पे है तो ये डाउन वॉश की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, तो जो इसका फ्री फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और डायनेमिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये होता है, जो टेल एफिशिएंसी है वो 1 से कम हो जाती है। और अगर टेल ऐसी है कि वो इसके वर्टेक्स फॉर्मेशन जोन से बाहर की तरफ है, मतलब कि हाई टेल है, टी टेल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में क्या होगा कि डाउन वॉश का कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो डायनेमिक प्रेशर सेम होगा और टेल एफिशिएंसी 1 आएगी। ओके, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अभी बात करते हैं निकालना क्या है हमें। ओके, तो हमारे पास ये डेटा है, उसके बाद नेक्स्ट डेटा क्या है हमारे पास, सी एच एल्फा टी। ओके, एंड सी एच डेल्टा ई। अब व्हाट इज सी एच एल्फा टी? सी एच एल्फा टी इज द फ्लोटिंग टेंडेंसी। ठीक है, फ्लोटिंग टेंडेंसी, एंड it is basically the slope of hinge moment coefficient, इसका स्लोप है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेल एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, सी एच डेल्टा ई क्या है? सी एच डेल्टा ई वो भी स्लोप है, और वो किसकी वजह से है? चेंज इन एलिवेटर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा ई। ओके, तो हमारे पास ये डेटा है। अब हमें निकालना है शिफ्ट इन न्यूट्रल पॉइंट इफ स्टिक इज फ्री टू मूव। ओके, सो पहले सपोज एयरप्लेन जो है स्टिक फिक्स्ड मोड में था, एकदम से उसकी स्टिक को फ्री कर दिया गया, तो दोनों न्यूट्रल पॉइंट में शिफ्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, वो निकालना है। तो एक्स एन पी बाई सी माइनस एक्स प्राइम एन पी बाई सी। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है 1 माइनस एफ इंटू, ये लिख लेते हैं यहाँ पे हम, फॉर्मूला ऑफ एक्स एन पी और माइनस सी, 1 माइनस एफ इंटू सी एल एल्फा टी बाई सी एल एल्फा डब्ल्यू। ठीक है, इंटू वी एच इंटू नीटा इंटू 1 माइनस डी एप्सिलॉन बाई डी अल्फा। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो कौन कौन से पैरामीटर्स हमें अवेलेबल हैं और कौन से नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया शिफ्ट इन न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, उसके बाद अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स नहीं है। न्यूमेरिकल में हमें सी एल एल्फा टी दे रखा है और सी एल एल्फा डब्ल्यू भी दे रखा है, दोनों सेम है। वी एच की वैल्यू है हमारे पास, नीटा है, डी एप्सिलॉन बाई डी अल्फा है,
तो इसमें जो बाकी चीज नहीं है वो है एफ की वैल्यू। अब ये एफ क्या है? एफ है फ्री एलिवेटर फैक्टर। ठीक है, तो ये फ्री एलिवेटर फैक्टर जो है, इस फैक्टर की वजह से ही जो टेल कंट्रीब्यूशन है स्टिक फिक्स्ड और स्टिक फ्री केस में उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन है 1 माइनस टाउ सी एच एल्फा टी अपॉन सी एच डेल्टा ई। अब ये फॉर्मूला लिखा है तो इसमें एक टाउ नाम की नई बीमारी आ गई है। अब वो क्या है? इसमें टाउ जो है वो है आपका फ्लैप इफेक्टिवनेस। ठीक है, टाउ इज फ्लैप इफेक्टिवनेस और टाउ का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डी सी एल टी बाई डी डेल्टा ई अपॉन सी एल एल्फा टी। ठीक है, तो ये जो फ्लैप इफेक्टिवनेस है ये एलिवेटर फ्लैप इफेक्टिवनेस है एक तरह से। ओके, तो इसमें अगर हम देखें न्यूमेरिकल में हमारे पास डी सी एल टी बाई डी डेल्टा ई भी है जो कि यहाँ पे दे रखा हमें, और सी एल एल्फा टी भी है जो कि यहाँ पे है, अगर आप देख सकते हो तो ये 4.6 पर रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास अभी सभी पैरामीटर्स हैं, तो पहले इसको टॉ निकाल लेते हैं। टॉ निकालने के बाद क्या होगा कि हमारा एफ निकल जाएगा। तो टॉ निकालने के लिए अगर हम वैल्यू रखें तो डी सी एल टी बाई डी डेल्टा इज 1.9। ठीक है, 1.9 पर रेडियन और सी एल एल्फा टी जो है वो 4.6 पर रेडियन है, तो 4.6 पर रेडियन। ठीक है, तो इन दोनों का जब रेशियो आ जाएगा वो आएगा 0.413। 0.413। ठीक है, अब ये हो गया इसका रेशियो। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे इस एक्सप्रेशन में पहले और बाकी की, तो 1 माइनस 0.413 मल्टीप्लाइड विद सी एच एल्फा टी बाई सी एच डेल्टा ई। अब सी एच एल्फा टी और सी एच डेल्टा ई कितना? एक माइनस 0.008 एंड सी एच डेल्टा इज 0.013 per degree minus में। Okay, so their minus sign will get cancelled, so 0.013। okay, so from here what I will get, let me calculate, 0.413 multiplied with 0.008 divided by 0.013। ठीक है, 1 माइनस आंसर, सो 0.7458। ठीक है, सो 0.7458 और 0.746। okay, so this is the value of free elevator factor. Now I have the value of free elevator factor. Now I can use the original formula of this, x and p prime by c bar 1 minus 0.746. okay, so multiplied with CL alpha t by CL alpha w, both are same, so their value will be 1. VH is 0.55 and neta is 0.98. okay, so 0.55 into 0.98, so 0.98 means 98% efficiency of the tail. okay, means there is a 2% loss of dynamic pressure.
and 1 minus d epsilon by d alpha. So d epsilon by d alpha is 0.39, so 1 minus 0.39. Okay, so I'll okay, so after solving this I get this 0.0835 and 45. So 3545 means I can write this, or maybe 0.084. Okay, so I have this now, which is a non-dimensional number, and the answer which is given to us is in meters. So what we will do, we will do this x and p by c bar minus x prime and p by c bar, which is equal to 0.084, or x and p minus x prime and p is equal to 0.084 c bar. Okay, so for that we need to find out the value of c bar. So how to find out c bar? Since we know VH is known to us already, which is 0.55. Okay, and formula of VH is ST into LT upon S into C bar. Okay, so from this I will get ST by S. ST is 4.6, S is 39. So I'll use the values here, or what I will do, I'll write the expression for C bar directly. So 4.6 by 39 and this 0.55 here. ठीक है, VH वाली वैल्यू जो है, LT कितना 7.6 है, I think. Yes, 7.6. So from this I will get C bar value. So from this I get 1.6298. C bar is 1.6298 or 1.63 meters. Okay, so from here I'll get shift in neutral point by freeing the stick. So 0.084 multiplied with 1.63 meters is the answer. So let me check. 84 plus 1.63, so it is around 0.13692 meters, or 0.137 meters. Okay, and answer which is given to us is 0.138, so it's almost close. Okay, so here we can see that we have solved it correctly. So our procedure of solving is same, is correct. Our procedure of solving is correct. Okay, so I hope you understood this question. Step by step we have solved the steps here. Okay, so this was the answer. So if I write this answer so I can write shift in neutral point by freeing the stick is 0.138 meters. Okay, so that will be the answer. Okay, so this type of question can come in GATE exam for 2 marks. Okay, or maybe for 4 marks also.
if it is a common data question. ओके, सो कॉमन डेटा क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछ लेंगे कि टॉ की वैल्यू कितनी है, सेकंड पार्ट में आपको पूछ लेंगे शिफ्ट इन न्यूट्रल पॉइंट कितना है। ठीक है, तो दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, और एक हो जाएगा ये वाला जो यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ऐसे ऐसे दो क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा सकते हैं अगर डेटा ज़्यादा है और क्वेश्चन लंबा है तो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड this, and with this I will stop this video. Thank you very much.